Good morning, young learners. How are you? Good morning to all. Good morning. I hope you all are fine and in the best of your health. Now let us join the class. Students, last week we had done the poetry photograph. Just we had done the explanation. We had done the extracts and we had discussed the textual questions. Today, just I'll continue with the photograph only. I'll give you some short questions. And students, I want you all just to write down these questions. These are only the short questions where you need to answer in 30 to 40 words. You need to answer in a line or just in a word. So I want you everyone just to open your fair notebooks and just hold a pen in your hand. And before starting our work, please write down today's day, date and class work and the name of photograph and the name of the poem. Yes, please be ready with your notebooks. Now, हाँ जी बेटा, shall we start with the questions? Shall we start beta? Okay. चलिए, all of you start writing. You won't face any problem in writing because these are very short questions. That's why I have not sent you any pics. और ध्यान रखना बेटा further जो भी content है, right? Any other questions, extra questions, just I'll send you on the Teams. And I hope whatever the problems you are facing, you already have sorted out. Still, if someone still remains, so please sort out that problem, okay? Because the content won't be sent on WhatsApp. This is the reason that today I have not sent you the questions. And more of these are only the short questions, and I hope my students won't face any problem while writing these questions. Okay, write down the first question. Write all the questions simultaneously. बीच में कोई भी बच्चा space नहीं छोड़ेगा. Okay? And then we'll discuss. And after the discussion, you need to write down the answers in simultaneous only. मतलब पहले सारे questions लिख लो serial wise. In between आपने answer की जो space है वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. Okay? क्योंकि actually what you do, sometimes आप बहुत ज़्यादा space छोड़ दोगे या just and sometimes what happen आप space बहुत कम छोड़ोगे तो ऐसा है बीच में space छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. Start writing the question. Listen carefully and no one is going to just put his or her mic on. और मुझे लगता है मुझे अपने बच्चों के बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है. Write the first question. Whose photograph is mentioned in this poem? In this poem. I mean the poem जो word है now we pronounce it as poem. Okay students? Put question mark. Now move to next question. How can you say that? How can you say that the photograph was taken
was taken on a windy day. WIN was taken on a windy day. WINDY windy day. क्वेश्चन मार्क. हाँ जी बेटा. बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद कोई नहीं बेटा, हर क्वेश्चन के बाद आई विल रिपीट द वर्ड राइट डाउन नेक्स्ट. तो इट मीन्स दैट you have to put number next question and you need to write down next. Okay, so I am repeating second question again. How can you say that the photograph was taken on a windy day? Question mark. Now write down next question. Explain. Explain. Put colon sign. Colon means दो डॉट डाल दो ऊपर और नीचे. Colon sign. Start with double inverted commas. Put double inverted commas. Start writing. The sea holiday. The sea holiday was her past comma, mine is her laughter. Mine is her laughter. LAUGHTER. Now close double inverted commas. Put full stop. Now move to next question. Question number 4. Start writing. How does the poetess, ये विनय switch off your mic. How does the poetess feel 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 the loss of her mother? How does the poetess feel the loss of her mother? Question mark. Now write down next question. Explain. Put colon sign. colon sign डालिए. Put single inverted commas. Write down. It's silences. It's silences. Put the statement in single inverted commas. Close it. Put full stop. क्या बेटा? मदर के बाद क्वेश्चन मार्क है एंड दैट क्वेश्चन ओवर्स हियर ओनली. ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया बेटा. फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन. इट्स silences. ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. सबने लिख लिया? ओके. नाउ इट्स silences. आगे लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन. Who are the people
are the people in the photograph? In the photograph. Put question mark. Now write down question number 7th. एक्चुअली अब मैं बुक की स्टेटमेंट लिखवाऊंगी आपको और उसमें मैं पूछूंगी कि जस्ट नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन. ठीक है, तो मैं आपको लाइन डिक्टेट कर रही हूँ. यू हैव टू राइट डाउन द लाइन. ओके, या डू वन थिंग, you all have the books. Those who have the books, please open your photograph poetry और उसी में से मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ. ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7th. One holding one holding one of my one holding one of my mother's hands. ये स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है सिंगल इंवर्टेड कॉमास में डाल दीजिए, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिख लो नेम द पोएटिक डिवाइस. नेम द पोएटिक डिवाइस. ओके, लिख सकते हो, या विच पोएटिक डिवाइस इज गिवन इन दिस लाइन. आप क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो. इट इज अप टू यू. ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. all three stood still. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. all three stood, 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 still, STILL, to smile through their hair, through their, पोजीशन वाला, THEIR. then write down hair, HAIR, hair. सेम ब्रैकेट में डाल दो. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे तो स्टेटमेंट ही है, लेकिन अगर अलग मैं बोलूंगी तो क्वेश्चन ही बोलूंगी आपको. चलिए लिखिए. फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखो. washed their terribly, 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 transient means temporary, TRANSIENT, transient feet. Put full stop here. Again put in a bracket. Name the poetic device. Name the poetic device used in the line. Now write down next one. Next लिखो बेटा. With the labored ease of loss. With the labored
Labored, L-A-B-O-U-R-E-D, labored is of loss. Full stop. सेम है. पोएटिक नेम द पोएटिक डिवाइस, बस इतना ही लिख दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट स्टेटमेंट. Its silence silences. Its silence silences. Full stop. Again, you need to write down the poetic device. So, dear students, this is all about today's questions, and now we'll discuss these questions one by one. Now I am repeating the first question, and I hope you all know the answer of these questions because these are a damn easy questions given from your poetry. And in your exam, you will get these sort of questions only. अगर आपको पोइट्री क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म का क्वेश्चन है, चाहे एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा नहीं, यू विल गेट द शॉर्ट क्वेश्चन. अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है स्टूडेंट्स, यू विल गेट योर पेपर इन द फॉर्म ऑफ MCQs ओनली, right? So in that case, just you need to tick out the correct answer. Most probably you will get MCQs. But according to your written paper language, you will get in the extract I have given you. Extract आपको given होगा, right? और 2 marks, क्योंकि मैंने आपको जो format है that I have given you वो एक बार देख लेना. उस extract में से you will get 2 questions, जिसमें से one of the most important question होता है name the poem and the poet. सेकेंड, कोई भी पोएटिक डिवाइस पूछ लेंगे आपको, मीनिंग ऑफ द लाइन पूछ लेंगे आपसे. एनीथिंग कुड बी आस्क्ड इन अ गिवन थिंग. नाउ आई एम रिपीटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. हुज फोटोग्राफ इज मेंशन्ड इन दिस पोएम. किसकी फोटोग्राफ थी स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी इजी है. यू कैन आंसर वन बाय वन. मतलब फोटोग्राफ थी, एंड इन द फोटोग्राफ इट वाज, एंड द फोटो किसकी थी? इट वाज द पोएटस मदर. मेन फेसिस पोएटस मदर है, along with her 2 cousins. That was the photograph in that. Now come to next question. How can you say that the photograph was taken on a windy day? अब now look at this question. अब इस क्वेश्चन में how can you say that मीन्स आपने इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिससे पता चलता है कि हाँ that they were at the beach and the wind was blowing on. How can you express this answer? देखिए, it is given there ना, all 3 stood still to smile through their hair. ये लाइन क्लियर है? स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब क्या है? इट वॉज अ विंडी डे जिसमें दे वर स्माइलिंग और उनके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, एंड बाल कहाँ आ रहे हैं? दे आर कमिंग टू देयर फेसेस. सो हाउ विल वी राइट डाउन द आंसर? हम इसमें लिखेंगे कि इन द फोटोग्राफ द गर्ल्स आर सीन स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. द विंड had made their hair fly on their faces. समझ में आई? मतलब वो हवा चल रही है जिसकी वजह से जो उनके जो मतलब when they were at the beach जो उनके बाल उड़ रहे हैं, और बाल उड़ के कहाँ आ रहे हैं? Just on their faces. This shows that the photograph was taken on a windy day. Now come to next question. Explain the sea holiday was her past. Mine is her laughter. अब ये लाइन देखो बेटा, कोई भी चीज एक्सप्लेन करने से पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. यहाँ पे पोएटस बोल रही है कि जब मेरी मदर ने अपनी फोटो देखी होगी तो वो फोटो उसके लिए पास था. जब वो मतलब 12 ईयर्स की जब सी बीच में गई उसके बाद उसने अपनी फोटो देखी. सो दैट वॉज द सी हॉलीडे फॉर द पास्ट फॉर हर पोएटस मदर. माइन इज हर लाफ्टर. लेकिन उसके लिए क्या है? पोएटस के लिए उसकी मदर की लाफ्टर है. तो इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप ध्यान से सुनो. यहाँ पे हम लिखेंगे द मदर ऑफन रिमेंबर्ड द जॉय ऑफ हर सी हॉलीडे बट इट वॉज फॉर हर अ थिंग ऑफ द पास्ट. किसके लिए थिंग ऑफ द पास्ट? किसके लिए होगी? पोएटस की मदर के लिए. एंड फॉर द पोएटस, पोएटस के लिए क्या है?
द लाफ्टर ऑफ हर मदर वॉज अ थिंग ऑफ द पास्ट. और ये पास्ट क्यों कहा गया है? बिकॉज हर मदर इज नो मोर, राइट? She is no more. That's why the laughter of her mother becomes the memory of her past. Now come next question. How does the poetess feel the loss of her mother? कैसा लगता है पोएटस को जब जो उसकी मदर है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है? व्हेन हर मदर शी इज नो मोर. हाँ, तो यहाँ पे बताया गया हाउ डज द पोएटस फील. पोएटस को कैसा फील होता है एट द लॉस ऑफ हर मदर, मतलब एट द डेथ ऑफ हर मदर. मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे? क्योंकि एक मदर का लॉस, द लॉस ऑफ अ मदर एक्चुअली वेरी इंटेंसली, शी फील्स वेरी सैड एंड लोनली. एंड हम ये कह सकते हैं इट इज ऑल एम्प्टीनेस फॉर हर. मतलब द लॉस, जो मतलब उसकी लाइफ का जो चार्म है, ऐसा लगता है दैट द चार्म ऑफ हर लाइफ हैज बीन लॉस्ट विदाउट हर मदर. शी बिकेम लोनली, शी बिकेम सैड. आप यहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो. यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन 2 वर्ड्स ओनली. ज़्यादा लॉन्ग एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन इट्स साइलेंस साइलेंसेस. पहली बात है, अगर ये साइलेंस साइलेंसेस का आता है, सर्कमस्टेंसेस वर्ड आता है, इट मीन्स दैट हर मदर इज नो मोर. शी फील्स सैड एट द डेथ ऑफ हर मदर. लाइफ हैज नो चार्म लेफ्ट फॉर हर. और उसके लाइफ में क्या है? खालीपन रह गया है, जहां पर मतलब वेयर देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ व्हाट शी ऑब्जर्व दिस साइलेंस, ओनली साइलेंस. ओके, नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइस. और पोएटिक डिवाइस आप बताओगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, बुक में से दिया है. चलिए, आफ्टर 6th 7th क्वेश्चन कौन बोलेगा? हाँ, 1 मिनट. ये आयुषी बोल रही है या बिंदु बोल रही है? हाँ बोलो बेटा. अरे यार चुप हो जा थोड़ी देर. लेट द अदर स्टूडेंट्स आंसर. ओके. हाँ, अलिट्रेशन है. 1 मिनट, स्टेटमेंट रिपीट कर दो सभी बच्चों के लिए. व्हाट इज द स्टेटमेंट? क्या है बेटा? ओके. हाँ, तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. अलिट्रेशन है. अलिट्रेशन कौन कौन से वर्ड्स की आई है बताएंगे? एम और एम. इस दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर दो, बिकॉज अगर क्वेश्चन में आता है कि अंडरलाइन द वर्ड्स वे यू हैव सीन द पोएटिक डिवाइस, और कौन सा पोएटिक डिवाइस है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, हाफ मार्क्स का आ गया. तो अगर आपको पता है लिटरेशन है, आप पहले पहचान लिया कि हाँ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है सेम, दैट इज एम एम. एलिट्रेशन है. गुड. यस, नाउ रिपीट द अदर लाइन. हाँ दिशा, आप बोलोगे? हाँ, लाइन बोलो बेटा पहले. हाँ बोलो. हाँ, थ्रू देयर हेयर. हाँ, तो बोलो बेटा. वेरी गुड. अलिट्रेशन एंड इंजाममेंट. शाबाश, एक्सीलेंट. क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप अलिट्रेशन देखो तो 2 जगह आ रही है, लेकिन आपने पूछेंगे नहीं एग्जाम में 2 जगह कहाँ है, एक ही पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पर स्टूड स्टिल हो गया. थ्रू देयर, टी टी, आप देख रहे हो ना लाइन, तो एलिट्रेशन हो गया. और इंजाममेंट क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यूशन है, लेकिन उससे पहले कोई भी कॉमा या कोई भी फुल स्टॉप या कोई भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, कोई पंक्चुएशन साइन नहीं है. अगर एक लाइन दूसरे लाइंस के मीनिंग के साथ कंटिन्यू है विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन साइन, तो हम उसको बोलेंगे इंजाममेंट. गुड. इसमें बड़े बच्चे ने अच्छे से सुना है. चलिए नेक्स्ट वन. ला ओके, हु विल जस्ट स्पीक? वर्षा. हाँ वर्षा, आप बोलो. हाँ, वेरी गुड. यहाँ पर है एलिट्रेशन, टी टी है, और यहाँ पर एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट. और ट्रांसफर एपिथेट क्या है? मतलब यहाँ पर कंपेयर किया है एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ. ट्रांसिएंट, टेम्परेरी कहा गया है. जो उनकी मदर के जो पैर, फीट है, फीट एक नाउन है, यहाँ पर मतलब सिम्बोलाइज उसके फीट से कहा गया जो वो निशान अब वहां मौजूद नहीं है, वॉश्ड अवे. इसका मतलब डीपर मीनिंग ये है, दैट मीन्स द फीट्स वेर वॉश्ड अवे मीन्स जो ह्यूमन है दे आर डीके, द ह्यूमन है दे आर लाइकली टू डाई.
बट द सी, जहां पर वो सी बीच पे गए थे, वो सी आज भी वैसी ही है। तो आपको बस मैंने मीनिंग बताया, लेकिन ये सब चीज आपने एक्सप्लेन नहीं करना। पोएटिक डिवाइस मतलब सिर्फ आपने लिखना है, एक एलिट्रेशन है और एक एपिथेट है। चलिए, हु विल स्पीक द नेक्स्ट वन? विनय। हाँ हाँ, विनय, चलो एक बार विनय बोलेगा, उसके बाद आप बोलना। हाँ जी विनय, अब आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है? चलो ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, बोलो बेटा नेक्स्ट वन। हाँ हाँ, श्योर श्योर बेटा, आप बोलो। हाँ, नो नॉट हर्ष। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। हाँ, एक बार स्टेटमेंट रिपीट करो बेटा, कौन सी लाइन है? ठीक है, विद लेबर ईज ऑफ लॉस, ये ऑक्सीमोरन है। हाँ चलो हर्ष, अब आप बोलो ऑक्सीमोरन कैसे है? हाँ जी, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है विद द लेबर इज ऑफ लॉस? बोलो, पोएटिक डिवाइस कौन सा है? कौन सी वाली लाइन में? टेरिबली ट्रांसिएंट फीट? किसमें? अच्छा, तो इसमें ऑक्सीमोरन कहाँ से आ गया? एक बार ध्यान से पढ़ लाइन। हाँ बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। यस। हाँ, लॉस, देखो, लेबर इज ऑफ लॉस। हाँ, यस, वेरी गुड। देखो, लेबर्ड, इज, दोनों वर्ड को देख लो। लेबर्ड मीन्स हार्ड, और हार्ड का ऑपोजिट क्या हो गया? ईज हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीमोरोन हो गया। अब पकड़ा गया हर्ष, है ना? चलिए नेक्स्ट, विच इज, चल हर्ष नेक्स्ट बता दे, चलते को मैं ऑप्शन दे रही हूँ एक और। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बोल। हाँ, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ध्यान से देख, ध्यान से सोच मत। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड हर्ष, बहुत इजी है एक। हाँ, बस इतना सोचने की जरूरत क्या है कि इसमें क्या है, एक एलिट्रेशन है, और एक और बताया था मैंने, कौन सा है? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे खामोशी, यस बिल्कुल, क्योंकि खामोशी कभी बोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे दो पोएटिक डिवाइस हैं, एक आपका एलिट्रेशन है, एक आपका पर्सोनिफिकेशन है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द पोएट्री, and I hope you like this poetry. आप सुनो students, tomorrow I will start with the next topic. Okay, chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Before that, I want everyone to complete your work, poetry, everything, starting with the extracts, textual questions, and extra questions. Okay, and you send me your work in the form of PDF to me, right? And hope so जितना वर्क हुआ है आप सभी ने कंप्लीट कर ही रखा होगा। हाँ जी बेटा, उतना वर्क कंप्लीट कर रखा है सबने? हम्म, ओके, हर्ष कर रखा है काम? हाँ, नहीं कर रखा ना? मेरे पास नोटबुक आ जानी चाहिए आज। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, so this is a work you need to do, and we'll start the next chapter tomorrow. हाँ, अब बताओ बेटा, do you have any doubt, any one of you, regarding this poetry? हाँ जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, explain the sea holiday was her past
comma, mine is her laughter. Mine is, okay, आप आंसर लिखना चाहो चलो लिख लो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ वर्ड्स में। चलिए लिखो, द मदर लिखिए, द मदर often remembered, the mother often remembered the joy of her sea holiday, joy of her sea holiday, full stop. But it was for her, हर यहाँ पे मदर है, कोई कंफ्यूजन है तो लिख लो, हर मदर को बोला है। इट वॉज फॉर हर अ थिंग ऑफ द पास्ट, अ थिंग THING of the past, full stop. And for the poetess, comma, the laughter of her mother, the laughter of her mother was a thing of the past, was a thing of the past, full stop. हाँ जी बेटा, इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना हो? हाँ बोलो दिशा। एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट्स? हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो। अच्छा चलो, ओके फाइन, बिल्कुल। अच्छा आप डू वन थिंग स्टूडेंट, जो है ना, अच्छा क्यूब है, 3 क्यूब है, मुझे लगा स्क्वायर है। विनय स्क्वायर है, विनय क्यूब है। चलो मुझे बोलो बेटा, सर ने बोल दो नाम के साथ। आई एम राइटिंग इन माई डायरी। बोलो बेटा। विनय ढाका, ओके। हु इज द नेक्स्ट वन? बोलो भाई विनय, कौन कौन से हैं? एक ढाका है एंड द अदर वन? और अच्छा, और चलो कोई नहीं, इस पे कोई कमेंट नहीं बेटा, विनय। और नेक्स्ट हु इज द थर्ड वन? Okay, and the next cube is Vinay Kumar. Okay, then I'll call you by names. One is, can I call you by your surname? हाँ जी, विनय ढाका। ठीक है, तो एक अपने ढाका जी हैं, एक विनय है और एक अपने विनय कुमार है, ठीक है। चलो फाइन बेटा, अपना वर्क कंप्लीट रखना ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, सो के उठता है हर्ष तू। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था, हाउ कैन यू से दैट द फोटो, अच्छा लिखना है हर्ष तुमको? ओके चल लिख, जल्दी लिख। हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू आंसर, देख सुन, आंसर वेरी इजी है। बुक है तेरे पास? डू यू हैव द बुक? बुक है? अब बुक में देख, 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन देख बेटा, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन देखी? पूरी फिफ्थ लाइन को अंडरलाइन कर दे, यही तुम्हारा आंसर है। अगर सिर्फ ये भी लिखते हो ना, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, इट शोज दैट इट वाज अ विंडी डे, बस खत्म, यही आपका आंसर है। ओके
और मैंने इसको अदर वे राउंड में इसलिए बताया था कि दैट मीन्स द विंड हैड मेड, चल लिख, आंसर लिख, जिसको जरूरत है लिख लो बेटा. इन द फोटोग्राफ the girls are seen smiling through their hair, through THROUGH, their EIR वाला, इसको पोजीशन वाला देयर बोलते हैं. their hair, HAIR, full stop. The wind had made their EIR वाला their hair ball fly over their faces, fly over their faces, full stop. This shows that the photograph was taken on a windy day. On a windy day. Full stop. हाँ जी बेटा. Any other doubt to anyone? हाँ जी क्लास. Okay. हाँ तो shall we close the class now?